Wahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We'll begin with Aqeeda again. Aqeeda fundamental principles जो हम लोग follow कर रहे हैं. And again हम लोग अभी तौहीद की डेप्थ में जाएंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि धीरे धीरे we are going to focus on it and focus करते हुए फिर हम एक टर्मिनोलॉजी को एक उसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. तो इंशाल्लाह ताला आज we will start with तौहीद. इंट्रोडक्शन टू तौहीद. तौहीद का मीनिंग क्या है? तौहीद हम लोगों ने बहुत बार सुना है, हम यूज भी करते हैं. वी कंसिडर आवरसेल्फ एज मुवाहिद. तो तौहीद की मानी क्या है? तौहीद इज डिवोशन ऑफ वंस एक्ट ऑफ वर्शिप टू अल्लाह अलोन. यानी सारी की सारी इबादत किसके लिए? सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए. दैट इज तौहीद. अगेन इट कम्स फ्रॉम वाहिद, दैट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन एंटिटी. अब इबादत के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. इट इज नॉट जस्ट सलाह, सोम, ज़कात, सिर्फ हमारे बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं है. उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. इंशाअल्लाह ताला उसके एक एस्पेक्ट के अंदर हम लोग फोकस करते जाएंगे. लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है कि द डिवोशन ऑफ वंस एक्ट ऑफ वर्शिप टू अल्लाह अलोन इज कॉल्ड तौहीद. ओके और इसका अगर हम सिंपल वर्ड में अगर उसको डिफाइन करें, ये जो अभी मैंने कहा वो उसका मीनिंग हुआ. ठीक है, अगर हम तौहीद को डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, तो उसका मीनिंग एक ही बनेगा, वो है मेक इट वन. यानी सारा का सारा आपका ये जो इबादत का जो लेयर्स हैं उसको फोकस करके एक तरफ टारगेट करना, उसे कहते हैं तौहीद. In Sharia, it is to single out Allah Azza wa Jal with what is exclusive to him of his lordship, which is Rububiyya, divinity, which is Uluhiyya, and his names and attributes. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर एक टर्मिनोलॉजी की शरिया की एक अलग डेफिनेशन आती है. इन पॉइंट ऑफ अकीदा के हिसाब से इसकी अलग डेफिनेशन आती है. लेक्सिकल मीनिंग एक अलग आता है, जनरल मीनिंग एक अलग आता है. तो शरिया के हिसाब से तौहीद इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हिच इज रुबूबिया, उलूहिया एंड अस्मा व सिफात. So तौहीद, अब आप जो हैं गौर से सुने. इंशाल्लाह we will take the notes as well, but आप गौर से सुने. I want your focus. Imagine तौहीद at the top with 3 branches. The 3 branches, the 3 kinds of tawheed will be tawheed ar-rububiyya. What is tawheed ar-rububiyya? As the name suggests, rububiyya, Rabb. Now you know what is Rabb. You know who is Rabb. The Rabb is the creator, the owner, and the manager. Khaliq, Malik, Mudabbir. So all the lordship aspects will go under rububiyya. Followed by tawheed al-uluhiyya, the divinity. What comes under divinity? That is, you are singling out only Allah Azza wa Jal for worship. For all sorts of ibadah, you are singling out Allah Azza wa Jal. That goes under Tawheed al-Uluhiyya. The third is Tawheed al-Asma wa Sifat. As we all know, through Quran and Sunnah, we have at least 99 names almost that we know, which comprises of Allah subhanahu wa ta'ala's names and attributes. So those entire thing of knowing his attributes and his names, the quality, the sifat, that will go under the category of the third kind, which is Tawheed Asma wa Sifat. Any confusion so far? I had told you earlier कि we will go very slow. मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत धीरे धीरे पेस पे जाएंगे. कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा. जब तक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. So if there is anyone who would like to ask any question, या इसको समझ नहीं आ रही है कंसेप्ट, या कोई भी मिसिंग लिंक है, तो आप पूछें. तौहीद की मानी क्या है? Can somebody explain it to me? The meaning of तौहीद. मुझे ना आप लोगों का रिस्पांस चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी हाथ रेस करें और जवाब दीजिए. जी रशीदा, जी बोले. जी जी रशीदा बोले. The devotion of worship to Allah alone. The devotion of worship to Allah alone. Very good. And definition हम कैसे define कर सकते हैं इसको? एकदम simple definition बताएं. Make it one. Barakallah fiqh. Very good. Make it one. Make it one. Barakallah fiqh. Who can explain it in the terms of Sharia? How can you explain it in the terms of Sharia?
I think Shazia had raised her hand, or somebody else also. The three kinds. Okay, let me put in my question this way. What are the three kinds of Tawheed? Three kinds of Tawheed? It's Yes, Shazia. yes, ma'am. It's Yeah. Rububiyat. Then Hmm. it's next is Uluhiyya. Third is Asmaul Sifat. Very good. Barakallah Feek. So we have the idea now. What is Tawheed? What is the definition? What does it mean? And how has Sharia divided into three kinds? Getting further into it, the firm belief that Allah alone is the Lord, creator, sustainer of everything that exists, and that Allah alone gives life and takes it. The one who is in control of all the affairs of his creation. यानी जैसे मैंने आपको कहा कि रुबूबिया को याद करने के लिए हमारा क्लू क्या है? रब. रब की डेफिनेशन क्या है? खालिक, मालिक, मुदब्बिर. The one who creates, the one who manages, the one who nurtures, the one who sustains. यानी ये सारे एस्पेक्ट कभी भी आपके सामने आएंगे तो you will understand automatically that this is the aspect of ar-rububiyya, tawheed ar-rububiyya. अब इसकी एग्जांपल ये है, who gives life, who gives death, who is the creator? So there is no creator except Allah Azza wa Jal. So that goes automatically into tawheed ar-rububiyya. No sustainer except Allah Azza wa Jal. कौन है जो हमें कंटिन्यूसली, नॉट जस्ट एक बार हमें लाइफ दे दिए और फिर उसके बाद हमें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. कौन है जो हमें कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है? कौन है जो हमें हमारे लाइफ को मैनेज कर रहा है? कौन है जो हमें कंटिन्यूसली जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है? It is none other than Allah Azza wa Jal. So ये aspect भी, it will go under the category of Tawheed ar-Rububiyyah. So anything related to his creation, anything related to the sustenance, anything related to the ownership will go under Tawheed ar-Rububiyyah. Okay, coming to Tawheed al-Uluhiyyah. Now, Tawheed al-Uluhiyyah is also called Tawheed al-Ibadah. Why? Because it is pertaining to worship. It is pertaining to Ibadah. So, Tawheed al-Uluhiyyah is equal to Tawheed al-Ibadah. Examples of which is, we worship no one except Allah Azza wa Jal. Okay, that is an example of Tawheed al-Uluhiyyah. Second is, we make a vow. यानी हम कसम उठाते हैं. पहला है कि सारी इबादत जो है वो अल्लाह के लिए है, तो वो इबादा तौहीद अल-इबादा जो कि तौहीद अल-उलूहिया भी कहलाता है, और वो सारी की सारी इबादतें किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए और किसी के लिए भी नहीं. दूसरा, इसकी एग्जाम्पल, जैसे हम सलाह पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रोजे रख रहे हैं. किसके लिए रख रहे हैं रोजे? किसके लिए आप हज कर रहे हैं? किसके लिए आप ज़कात दे रहे हैं? यानी आपकी हर किस्म की जो आपकी इबादत है वो सिर्फ फोकस हो रही है अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर. दैट विल गो अंडर तौहीद अल-उलूहिया व्हिच इज आल्सो तौहीद अल-इबादा. उसके बाद जब हम दुआ करते हैं, हम कोई कसम उठाते हैं, हम कोई नजर मानते हैं, वो सारा का सारा किस में जाएगा? तौहीद अल-उलूहिया. बाय द वे, ये सारे जितने भी चीजें मैंने मेंशन की ना, ये सब फॉर्म ऑफ इबादा ही है. ओके, नंबर थर्ड, तौहीद अल अस्मा व सिफात. इसका क्या मानी है? Affirming that Allah Azza wa Jal and all his names and attributes which he affirmed for himself in his book or in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and reject the likeness of the attribute to any of the creation of Allah Azza wa Jal. जैसे हमने लास्ट टाइम भी इस पॉइंट को एक छोटा सा डिस्कस किया था ब्रीफ के तौर पे, कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें अल्लाह ताला के कितने सारे नाम है, कितनी सारी सिफतें हैं. इफ वी जस्ट थिंक ऑफ वन सिफा, okay, which is say अशाफी. हमने दवा खाई, हम डॉक्टर के पास गए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस दवा के अंदर हमारे लिए शिफा रखी. यानी वो जो कॉज बनाना, जो जरिया बना, वो दवा थी, वो थेरेपी थी, वो इलाज था, लेकिन शिफा, फाइनल शिफा जो है वो हमको कौन देते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल. तो ये है अस्मा और सिफात की एग्जाम्पल, कि वो जो अल्लाह की सिफत है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही डायरेक्ट करना है. वो सिफत हम लोगों की तरफ डायरेक्ट नहीं कर सकते. इट इज अ टाइप ऑफ अ तौहीद कि वो सारी पावर, सारी कुव्वत किसकी है?
अल्लाह अज़्ज़ा वजल की है, उसको हम अल्लाह की क्रिएशन मखलूक को नहीं दे सकते. वी कैन नेवर मिक्स खालिक एंड मखलूक, नेवर एवर एवर. Khaliq is Khaliq, he is the creator, he will always remain at that level, and makhluk will always live, remain at their level. And Khaliq and makhluk can never be the same. Khaliq and makhluk can never come in one level, never ever. तो आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली आप उसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते. लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ जहालत, बिकॉज ऑफ ला इल्मी, ये हमसे दिन भर में कई बार होता है. मे अल्लाह फॉरगिव अस ऑल. बट हमें इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कि हमारी बिलीफ सिस्टम का जो, अगर हम उसको कन्वर्ट करें, कि अगर हम सोचें उसको कि वो क्या है, अगर हम सोचें इट्स लाइक अ पिज्जा, तो पिज्जा ब्रेड जो है वो हमारा अकीदा है, और फिर उस पे जो टॉपिंग्स एंड ड्रेसिंग्स आ रही है वो बाकी सारी चीजें हैं, वो ऑल अदर एलिमेंट्स हैं. तो हमें अकीदा जो है, अगेन रिमेंबर द नॉट, उसको इतना टाइट करना है, इतना फर्म करना है कि हम गलती से भी, अनइंटेंशनली भी किसी भी तरीके का शिर्क ना करें. सो इसको अच्छी तरह से समझ लें. तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल उलूहिया एंड तौहीद अल अस्मा व सिफात. अब मैं आपसे ना कुछ जस्ट लाइक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक एक चीज पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि ये कौन सी वाली तौहीद के अंदर कैटेगरी में जाएगी. ठीक है? जिन्होंने अटेम्प्ट करना है वो अनम्यूट कर लीजिए और क्विकली जवाब दीजिए. व्हेन आई से अल्लाह इज माय क्रिएटर, ये कौन सी वाली कैटेगरी में जाएगा? रुबूबियत मैम, रुबूबियत. आई वुड Rububiyya. Very good. Rububiyyat. We'll go one by one, huh? I made a vow for Allah. मैंने एक नजर मानी अल्लाह के लिए, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? मैम इट्स उलूहिया. Uluhiyya. Uluhiyya. Okay, we will raise hands and we will answer ताकि दूसरों को भी सबको चांस मिले. हाँ, quickly. Allah knows what my intentions are. Allah knows what my intentions are. अल्लाह जानते हैं कि मेरी नियत क्या है. ये कौन सी काइंड में जाएगा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? जी महम. रुबूबिया बाजी. वेरी गुड, बारकल्लाह फीक. इट विल गो इन रुबूबिया. महम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई रुबूबिया? उस रुबूबिया में क्यों जाएगा? क्योंकि तौहीद अल रुबूबिया वी आर शेयरिंग हिज लॉर्डशिप, तो ही इज लाइक ऑल नोन. अल्लाह को सब पता. Very good, because it is a matter of his creation, and he being the Khaliq, he being the creator, he knows everything, in even the things that we intend and we don't speak. Very good, barakallah feek. Okay, I worship Allah, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? I worship Allah, there is a clue in the sentence itself. जी समीरा. Uluhiyya. barakallah feek, uluhiyya में जाएगा. Allah heals my illness, अल्लाह ताला क्योर्स माय इलनेस, ये किस में जाएगा? जी रशीदा. Asma wa sifat. अस्मा व सिफत. अस्मा व सिफत, Tawheed asma wa sifat. आसमा व सिफत में सेकेंडरी जाएगा, लेकिन उससे पहले कहां पर जाएगा? और एक है जो कि उससे ज्यादा है. यस माहिम. रुबूबिया में एग्जैक्टली, Rububiyya. रुबूबिया एंड अस्मा व सिफत. Rububiyya first. Why? Because lordship. Again, Khaliq, the one who nurtures, Mudabbir, the one who sustains. So उसमें भी जाएगा. And of course, because it is a characteristics, it is an attribute, तो asma sifat में भी जाएगा. Okay. Allah sustains me. Allah sustains me. ये किस में जाएगा? जी. मैम it goes under रुबूबियत. It goes under Rububiyya. Why is that so? Because he is the one, he is the sustainer, he is the creator. Correct. He is the manages creator. everything. Yes. Creates he everything. is. Okay. Allah is merciful. ये किस में जाएगा? Yes, Rashida. Asma wa sifat baji. Very Names good. of Allah. Yes, Asma wa Sifat. Very good. I do sujood for Allah Azza wa Jal. ये किस में जाएगा? Ma'am, it goes under uluhiyya. Uluhiyya. It goes under uluhiyya. Allah is all powerful. Allah is all powerful. ये किस में जाएगा?
Yes, wait, I want to Amreen. Yes, Amreen. कौन सिफत पे जाएगा मैम? जी, कौन सिफत पे जाएगा? थर्ड कैटेगरी. very good. Asma wa sifat में जाएगा. Right, you're right. Allah is as-sami. He is all hearer. ये किस में जाएगा? Again, it goes under third Asma. category, ma'am. Asmaul Again, it sifat. will go in Asma wa Sifat. Okay. Asmaul sifat. Allah Azza wa Jal is in control of the universe. Allah Azza wa Jal is in control of the universe. ये किस में जाएगा? Yes, Shabana. Maybe Al-Rububiyya, Why maybe? because I'm not sure. No. Be sure. Rab, creator, master, owner. Definitely Rububiyya में जाएगा. Be 100% Rububiyya, sure. okay. Yes. Absolutely. Okay. I fast for Allah Azza wa Jal. I fast for Allah Azza wa Jal. Yes, Maham. Babaji, Tawheed al-Uluhiyya. Tawheed al-Uluhiyya. Absolutely correct. All sorts of ibadah will go under Uluhiyya. All sorts of power. Creation की जो एक power होती है ना, यानी जो creator है वो ऐसी powerful चीजें बनाई है, इतनी जबरदस्त, इतनी magnificent चीजें बनाई है, ये सारा कुछ किस में जाएगा? रुबूबिया में. Don't be doubtful. सारा का सारा. All the creations, things pertaining to the creations will go in rububiya. All sorts of ibadah will go under uluhiyya. And then attributes, जो हमको नामों की सिफत से attributes हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पता है, the names and the attributes जो हमको पता है वो directly asma व सिफत में जाएगा. So alhamdulillah, I think we are clear on that part कि what are the kinds and what category will each of the aspect will fall into. Alhamdulillah. अभी मैं आप लोगों को ना कुछ references भी दूंगी, तो I want you to just copy the reference. After the class, just go and read the commentary. आप उसकी एक brief summary या brief तफसीर पढ़ लीजिए, तो आपको understanding जरा better हो जाएगी. क्योंकि for everything we will have references and I want you to copy those references. जैसे कि अभी next step जो है, जो कि importance of तौहीद, के अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान और जिन को किस लिए क्रिएट किए थे. So we have in Surah Ad-Dariyat, Surah 51 verse 56, and Allah created not the jinn and mankind except that they should worship me. It's a very important ayah, very common ayah, and you should know this reference. So it is Surah 51 and verse number 56, जो कि clearly आपको बता रही है the purpose of our existence. हमारा existence का मकसद क्या है? क्या हम लोग आए हैं इस दुनिया में enjoy करने के लिए, relax करने के लिए, सारी नेमतों को इस्तेमाल करने के लिए और फिर नाशुक्र बन के बैठने के लिए? क्या है? What is the reason? What is the purpose of our existence? Our purpose of our existence is to worship Allah Azza wa Jal. General meaning of the verse specifies the wisdom behind creating jinn and humans. Unlike worldly masters, Allah Azza wa Jal does not sustain his servant in return for benefits, for he intends all good for them. अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इंसानों के लिए, हमारे लिए हर बार खैर और आफियत ही सोचते हैं. He is giving us all the possible things. हमारे मांगने से, बिना मांगने से अल्लाह ताला हमें continuously चीजें दे रहे हैं. Continuously हम अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं. The verse eliminates the obligation of तौहीद. Obligatory matter है ये तौहीद. ये तौहीद कोई optional या voluntary नहीं है. ये चॉइस नहीं है, मैटर ऑफ चॉइस भी नहीं है कि आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक. ये ऑब्लिगेटरी मैटर है. अगेन आई रिमाइंड यू, जहां पर भी ये ऑब्लिगेटरी वाला वर्ड आता है ना, बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज ये वो एस्पेक्ट है जो अगर आप ना करो या आप उसमें कुछ कमी पेशी करो तो आपकी पकड़ होगी. सो ऑब्लिगेटरी मैटर है ये तौहीद. ये एक आया के अंदर आपको क्लियरली अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस बता दिया है. सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, इबादा की कंडीशंस क्या है. देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इबादा. व्हाट आर दोस? Does anyone remember? Sincerity and ittiba. Sincerity and ittiba. Ikhlas and ittiba. Ikhlas is sincerity only for the sake, barakallah fiki Shazia. Sincerity towards Allah Azza wa Jal, that only for the sake of Allah Azza wa Jal. Okay, not for any riya, not for any suma, not for any show off, not for pleasing anyone else but Allah Azza wa Jal. That is sincerity. And then ittiba of whom? किसकी हम लोग कॉपी करेंगे, किसके steps को हम follow करेंगे? Nabi sallallahu alaihi wasallam. If these 2 conditions are met,
then you can say that you are doing the ibadah which bi'idhnillah will be accepted by Allah Azza wa Jal. Now, if we lack in sincerity, what happens? It becomes riya. It becomes minor shirk. अभी आप देखें ये छोटी छोटी चीजें शायद हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी जाके एक कैटेगरी में फॉल कर रही हैं. जब हम शो ऑफ कर रहे हैं, किधर जा रहा है डायरेक्टली? माइनर शिर्क में. एंड माइनर शिर्क is not a small affair. Shirk is not a small affair. तो we have to be very very careful कि अगर sincerity नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा. और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? बिदा. अब आप अगेन माइंड में मैप बनाइए कि हमने बोला एक आयत से कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिन और इंसान को पैदा किया. Why did he create those creation? To worship him. अब worship की दो conditions. Again दो कैटेगरी आ गई. क्या है कंडीशंस? सिंसियरिटी एंड इत्तिबा, व्हिच इज इखलास, एंड वी हैव टू फॉलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर हम इखलास में कमी पेशी करते हैं, दैट कल्मिनेट्स इज इक्वल टू शिर्क. वो शिर्क में चला जाएगा, माइनर शिर्क है रिया. ठीक है. और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में कमी पेशी करते हैं या अपने तरफ से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो वो कहां पर चला जाएगा? बिदा. So now see shirk and bida. You got it? ऊपर आ गया हमारा तौहीद and इबादा, and नीचे से हम अभी ब्रांच आउट करते जा रहे हैं. So we know the two conditions here: sincerity to Allah Azza wa Jal and following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibada in Arabic language means what? It means humility and submission. Now these are the words जो आप है ना नोट करते जाओ और अपने जहनों में भी फिक्स करते जाओ. Al ibada, worship in Arabic language means humility and submission. अब शरिया में इसका मीनिंग क्या होगा? What will it define as in Sharia? It is a comprehensive term for everything which Allah loves and is pleased with, from statements and actions, both apparent and hidden. अब ये पूरा एक कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सारे एस्पेक्ट्स इसमें मिलाकर एक अच्छा डेफिनेशन बन रहा है. क्या डेफिनेशन बन रहा है शरिया के हिसाब से? इबादा इज एवरीथिंग विद विच अल्लाह इज प्लीज्ड एंड ही लव्स दैट, फ्रॉम स्टेटमेंट्स एंड एक्शन, यानी आपके वर्ड्स और एक्शन, बोथ अपेरेंट एंड हिडन, यानी जाहिरी भी और जो खफी है वो भी, यानी इट कवर्स एवरीथिंग in terms of ibadah which is apparent and hidden, both through words and through action. अभी आप देखिए इबादा के अंदर और उसकी अकसाम आएगी कि क्या काइंड्स ऑफ इबादा होती है. इबादा इज द इबादा ऑफ हार्ट. हार्ट की इबादा अंदर जो हमारी निया होती है, राइट, दैट इज हिडन. ओके, अब इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? वर्शिप ऑफ द हार्ट इनटू ब्रैकेट हिडन. इसकी एग्जांपल क्या है? लव, होप, रिलायंस एंड फियर. दीज आर द एग्जांपल्स कि हमको जो है अल्लाह से मोहब्बत है. It's an abstract thing. You can't think it. You can't show it. You can't prove it. It's a matter of heart. तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के ऊपर हमारी जितनी भी फीलिंग्स और इमोशंस है, होप की, उम्मीद की, ओके. फिर उसके बाद खौफ, फियर. सो मोहब्बा, रजा, खौफ, these are the emotions. इस्तेआना, we are relying on Allah, तवक्कुल, ये सारे इमोशंस हैं जो ये मैटर्स ऑफ द हार्ट है, इबादा ऑफ द हार्ट है, और ये हिडन है. ठीक है. अब हम आते हैं इबादा ऑफ द लिम्स, यानी हमारे हाथ पैर, हमारे लिम्स, हमारे अज़्ज़ा. इबादा ऑफ लिम्स के एग्जाम्पल क्या होगी? सलाह, हज, जिहाद एंड सौम. We can see people praying, we can see people fasting. Of course it is a combination of hidden and apparent, क्योंकि अकेले में कोई क्या खा रहा है पी रहा है वो हमें नहीं पता. It's between abd and Allah, but it is apparent. We can see people. We can see people going for hajj, सही कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं. We can see. And then jihad, all sorts of jihad which we can see. So that is the ibadah of the limbs, यानी हमारी अज़्ज़ा की जो इबादा है उसकी काइंड हो गई. Now let's come to verbal इबादा, कि हम कलिमात से, लफ्जों से कैसे इबादा करते हैं. We recite Quran, we do tasbih, we see people giving good advice, एक अच्छे इखलाक और खुलूस से बात करना, ये सारी जिक्र अस्कार, कुरान की तिलावा, ये सारी चीजें किसके कैटेगरी में जाएंगी?
इबादा ऑफ वर्ड्स, ओके, कलेमात के थ्रू इबादा करना, एंड देन माल से इबादा करना, मॉनेटरी वर्शिप। ये हम लोग देखते हैं ज़कात, सदका, चैरिटी, जो आप पैसे से करते हैं। In fact, Hajj can also be included in monetary worship because there we are using our money. So these are different kinds of ibadah. अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग ये इबादा कर रहे हैं और उसकी एग्जांपल्स भी हमने समझ ली। कोई ऐसा पॉइंट जो इस वाले सेक्शन में नहीं समझ आया किसी को, या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? यस वाहिद, गो अहेड। बाजी, हज एंड उम्रा ये दोनों मॉनेटरी इसमें आएंगे इबादा में? मॉनेटरी एंड लिम्स में ना, ओके, क्योंकि वो आप अपेरेंटली देख भी रहे हैं, आपकी एक्शंस में आ रहे हैं, तो वो एक्शन अपेरेंट, मॉनेटरी एंड लिम्स दोनों में आएंगे। ओके ओके। यस रशीदा। बाजी वो सूरा नंबर कौन सा था? सूरा आया नंबर 56 बोले थे ना? या सूरा नंबर 52, आया नंबर 56। ओके बाजी, जज़ाकल्लाह। वही आगे। So the reason behind the creation is तौहीद। वर्शिप की डेफिनेशन, कैटेगरीज और कंडीशंस हमने देख ली। Some people think, वो जो बहुत कॉमन है, कुछ जो हम समझते हैं कि वर्शिप इबादा की मानी क्या है, सिर्फ सला, रोजा, हज, सौम वगैरह, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है हमारी। लेकिन इसके अंदर हर किस्म की फर्माबरदारी आती है, इसके अंदर हर किस्म के इमोशंस आते हैं। वो सारे इमोशंस, वो सारी इबादतें, वो सारा कनेक्शन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो जाहिर भी है और खफी भी है, जो कि वर्ड्स, जो कि पैसे और जो कि हमारे अज़्ज़ा के थ्रू हम अदा करते हैं। सो इट इज समथिंग मच मोर डीपर। इबादा की मानी सिर्फ और सिर्फ वो चंद चीजें नहीं है जो हम करते हैं, इट इज मोर देन दैट। तो ये चीज हमको आज के चैप्टर में एकदम क्लियरली समझना है कि इबादा कितनी डीप और कितनी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। नो वंडर कि हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन है। नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, डज अल्लाह अज़्ज़ा वजल नीड आवर वर्शिप? क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हमारी इबादा की जरूरत है? No, ma'am. Why, Amreen? Ma'am, because he has already created angels and all the makhluk who are constantly in his worship. Absolutely Whose right. main purpose of the creation is to worship him. So Exactly. he is not in need of our worship. He In is fact, not. he Go is ahead. very well capable of eliminating all of us and creating all the human beings all over again who will worship him alone. Absolutely right. Absolutely right. Barakallah He is not fika. in need of Okay. To express this further, ये हमारी जनरल नॉलेज है, हमें पता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, कि हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ही अल्लाह की इबादत करना है, ऑन द वे ऑफ व्हाट, एक इखलास के थ्रू और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर। अब ये पॉइंट जो है ना कि डज अल्लाह अज़्ज़ा वजल नीड आवर वर्शिप, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान दूंगी। आई वांट यू टू गो बैक अगेन एंड देन चेक द तफसीर ऑफ इट। सूरा 51 वर्स 57, then second reference is surah number 14 verse 8, third reference is surah number 39 verse number 7। ठीक है, नोट कर लिया सबने? Okay, Ma'am, can you please repeat it once again? I think I will just type it out because कई बार pronunciation में थोड़ा सा issue हो जाता है। I'm typing it, huh? I'm typing it now. 14 verse number, surah 14 verse number 8, and then surah 39 verse number 7। Okay, तो ये तीन हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। आई वुड वांट यू टू गो बैक आफ्टर द क्लास एंड देन रीड ब्रीफ, उसकी तफसीर आप पढ़ लीजिए। सो इट इज अस, हम हैं जिन्हें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की इबादत करने की हमें जरूरत है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला इज सेल्फ सफिशिएंट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जैसे कि अमरीन ने एक्सप्लेन किया, एंजल्स है, डिफरेंट क्रिएशंस है जो कंटिन्यूसली अल्लाह की इबादत करती हैं और ओबीडियंस और ह्यूमिलिटी में रहती हैं, सबमिशन में रहती हैं। सो द मोर वी विल डू दिस इबादा विद द खालिस नियत इन द राइट वे, हमारे को क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पीस,
we will experience mutmainna wala stage. We will feel relaxed. We will feel content because we have fulfilled the purpose of our creation. अभी आपसे मैं एक और एक चीज एकदम प्रैक्टिकल जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि सुभान अल्लाह रमजान में हमें खाना कम हो रहा होता है. आई होप सो, बिकॉज सही टाइम पे हम थोड़ी क्वांटिटी खा रहे हैं. आई एम टेकिंग एन आइडियल सिचुएशन हियर कि हम लोग रमजान में कितना फंटास्टिक फील करते हैं. अगर एक नॉन मुस्लिम हमें ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो बोलेगा कि ये लोग तो खा नहीं रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा इबादत कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुश हम फील करते हैं, बहुत रिलैक्स हम फील करते हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता है पूरे रमजान. यू फील लाइक अमेजिंग. और ऐसा दिल करता है कि रमजान कब आया और इतनी जल्दी गुजर गया, ये रमजान ज्यादा क्यों नहीं होता. यानी एक बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होती है. आपको पता है उसकी एक स्ट्रॉन्ग वजह ये है कि उस एक मंथ में हम फोर्सफुली ही सही लेकिन वो सारे काम करते हैं जो कि हमारी पर्पस ऑफ क्रिएशन की वजह है, जो अल्लाह की इबादत है. तो आप सोचें कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल लगती है रमजान में. यू फील अमेजिंग एंड फंटास्टिक बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन कि जब आप इबादत करते हैं, खालिस नियत से आप इबादत करते हैं जो कि आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो आपको क्या मिलती है? वो सकीनत मिलती है. यू फील गुड, यू फील कंटेंट, यू फील एट पीस, यू टेस्ट द ट्रैंक्विलिटी only for that one particular month. Subhanallah. Imagine कि अगर हम पोस्ट रमजान, आगे पीछे रमजान के भी बाकी 11 महीनों में भी अगर हम इबादत खालिस नियत से करते जाएं और वो सारे उमूर करें जो हम रमजान में जबरदस्ती जिस कहते हैं ना कि फोर्सफुली करते हैं, वो हम अपनी खुशी से वॉलंटरीली हम दूसरे मंथ्स में भी अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह we will be content and peaceful otherwise also. क्यों? क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. Ibadah of Allah Azza wa Jal with khalis niyyah and on the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal has sent in every nation a messenger to call them to Tawheed. अभी हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता था तौहीद, हम नहीं जानते. We can never say that. अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें क्रिएट नहीं करके छोड़ दिए, अल्लाह ताला ने हमारी सब चीजों का इंतजाम किया है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी देखें, हवा पानी खाना पीना देना, माँ बाप देना, बहन भाई देना, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना, ये सारी चीजें सुभान अल्लाह बहुत बड़ी नेमा है. लेकिन इससे भी बड़ी नेमा है कि हमारी हिदायत का जरिया, हमारे सोल को गाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें हमारे लिए रखी हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर उम्मत के लिए एक नबी रसूल नाजिल किए. And that is a very important aspect because वो मैसेंजर, वो प्रोफेट हमें गाइड करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं और उनकी स्टेप्स इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह when we follow shadow step our messenger then it's a shortcut and an easy way. Imagine हमें इबादत का हुक्म आ गया लेकिन हमें पता नहीं इबादत कैसे करना है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटी सी छोटी डिटेलिंग हमें बताई, कैसे, कहाँ, क्या, कब, कितना, पोजीशन से लगाकर, डूज एंड डोंट से लगाकर, एवरी सिंगल डिटेल. यानी सुभान अल्लाह, नो अदर रिलीजन, आई कैन गारंटी यू दैट नो अदर रिलीजन इज सो मच in detail and has not taken care of. Subhanallah, this itself is a greatest proof. ये बहुत बड़ी दलील है हमारे पास कि हमारा रिलीजन कितना परफेक्ट, कितना रियल और कितना कंप्लीट है, कितना टोटल है, क्योंकि हमारे पास हर चीज की डिटेल और सोल्यूशन मौजूद है. सुभान अल्लाह. तो दिस इज अगेन वन ऑफ दी, जिसे हम कहते हैं ना ब्लेसिंग्स, one of the nema of Allah Azza wa Jal, one of the greatest nema of Allah Azza wa Jal. और इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ from Surah 16 verse 36. Again I'm typing it down. Surah 16 verse 36, which goes like this. Allah the Almighty said, and verily we have sent among every ummah, community, nation, a messenger proclaiming, worship Allah alone and avoid or keep away from तागूत. अभी इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा तागूत को डिस्कस करेंगे कि इसके जनरल मीनिंग. अब अगर इस आया का ले लें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मैसेंजर्स नाजिल किए हर कौम पर, हर जनरेशन पर, इनवाइट करने के लिए. किसके लिए? कि अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत, तौहीद. ओके, और कोई भी झूठे माबूदों को उनकी इबादत नहीं करनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम द पीपल फ्रॉम नूह अलैहिस्सलाम. ओके, जब
नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब शिर्क की इजाद हुई थी, वहां से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे फाइनल प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नेशन के पास एक मैसेंजर भेजा गया था उनको गाइड करने के लिए। और फिर जहां पर हमें इबादत के बारे में कहा जा रहा है, वहीं पर ही हमें नेक्स्ट उसी सेम सेंटेंस के अंदर लास्ट वाला जो पार्ट है वो कहा गया है कि तागूत से इज्तिनाब करें, कीप अवे फ्रॉम तागूत। अब ये तागूत क्या है? तागूत, व्हाट इज तागूत? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एंड इसको अच्छी तरह से आप यानी मेमोराइज करेंगे इंशाल्लाह। At-taghut is everything by which a worshipper transgresses his limit, whether it is something or someone that is worshipped, obeyed or followed. यानी कोई भी ऐसी चीज अल्लाह के सिवाय अगर उसके तरफ आप उसको इतना हद से ज्यादा तजावुज कर जाए उसकी अतात करने में, उसकी हुर्मत में, उसकी फर्मा बरदारी में, तो वो चीज जो है वो तागूत कहलाती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें ईसा अलैहिस्सलाम, he was a messenger, he was a prophet, agreed, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनको उनके मैसेंजर और प्रॉफिट हुड के दर्जे से ले जाकर इबादत के दर्जे पे पहुंच गए। यानी उन्होंने हद से ज्यादा तजावुज कर दी, उनकी इबादत, उनकी मोहब्बत, उनकी ओबीडियंस को और आगे लेकर चले गए। तो ये क्या हो गया, लोगों ने उनको तागूत बना दिया। अब इसमें क्या ईसा अलैहिस्सलाम की फॉल्ट है? यस रशीदा। Maji, can you repeat once again the meaning of taghut? श्योर मैं इसको थोड़ा सा रशीदा आप फिक्र ना करें, मैं इसको इतना रिपीट करूंगी इंशाल्लाह कि आपको बाय हार्ट हो जाएगा। एवरीथिंग बाय विच अ वर्शिपर, हर वो शय, हर वो चीज, हर वो इंसान, अगर आप उसकी हुर्मत में, उसकी अतात में, उसकी फरमाबरदारी में, उसकी मोहब्बत में हद से ज्यादा तजावुज कर जाएं तो वो तागूत कहलाती है। एग्जाम्पल, ईसा अलैहिस्सलाम was a prophet, he was a messenger। अभी लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको उनकी मोहब्बत और उनकी हुर्मत और उनकी फरमाबरदारी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उसका प्रॉफिट हुड के दर्जे से ले जाकर उन्होंने डिविनिटी, लॉर्डशिप का दर्जा दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये तागूत बन गया। सो अगेन विच आई एम डिफाइनिंग इज अ तागूत इज जनरली एप्लीकेबल टू ऑल दैट इज वर्शिप्ड बिसाइड अल्लाह, एवरीथिंग इन जनरल। If it is worshipped besides Allah, then it will be called taghut. Everything by which a worshipper transgresses his limit, whether it is something or someone that is worshipped, followed or obeyed. एक एग्जाम्पल हमने लिया ईसा अलैहिस्सलाम का, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं फिरौन। लोगों ने, वो किंग रूलर था बट वो जालिम रूलर था, एंड देन उन लोगों को भी उसके खौफ, उसका डर, उसकी ओबीडियंस, तो उन्होंने उसको खुदा बना दिया, तो वो तागूत हो गया। उसके बाद कुछ लोग जो हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्स की पूजा करते हैं, कुछ आग की पूजा करते हैं, ठीक है ना, कुछ जिनों की पूजा करते हैं, कुछ एंजल्स की पूजा करते हैं, कुछ कब्रों की पूजा करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या बन गया, ये सारा तागूत बन गया। Are we clear on the तागूत chapter? किसी को कोई सवाल, कोई डिस्कशन करना है तो it is open. Anybody wants to talk anything about this, we can talk. अभी आप देखें आज की तारीख में कोई स्कॉलर हो, कोई लीडर हो, उसको आप इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर लें, उसकी ओबीडियंस में, उसके दर्जे को लेकर आप उसको इतना बुलंद कर लें कि इट गोज एज गुड एज दैट यू आर वर्शिपिंग दैट एंटिटी, तो वो एंटिटी क्या बन जाएगी, तागूत। अगेन मेरा जो आपसे सवाल था कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही लेकर कि लोगों ने उनको वो दर्जे पे पहुंचा दिया। अब इसमें क्या ईसा अलैहिस्सलाम की गलती है? इज ईसा अलैहिस्सलाम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिस्टेक, फॉर द पीपल्स मिस्टेक?
Okay, No, somebody, ma'am. नहीं, क्यों नहीं? Okay, somebody is asking me But to he has never said that he has always insisted that he is a messenger and a prophet of Allah. Absolutely. ईसा अलैहिस्सलाम मासूम है और वो हर वली और हर नेक बंदा, हर स्कॉलर मासूम है जिनको लोगों ने तागुत बनाया। उन्होंने मैसेज ऑफ तौहीद ही पहुंचाया लोगों पर। सारे मैसेंजर, सारे प्रोफेट्स और काफी सारे जिनसे दीन फैला है अलग अलग जगह में, पूरी दुनिया में, वो नेक बंदे जो अल्लाह के बंदे हैं, वो नेक बंदों का उसमें कसूर नहीं है। ये लोगों की जहालत है, ये लोगों का इग्नोरेंस है कि उन लोगों ने उनको तागुत बना दिया। इसमें उनकी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह पकड़ नहीं होगी, लेकिन लोगों की होगी जिन्होंने उनको तागुत बनाया। यस माही। बाजी, मुझे ये बात पूछनी थी कि जैसे ताहूत, जैसे यू शेड अबाउट ग्रेव वर्शिपिंग, तो वो बिद्दा की कैटेगरी में नहीं आता? किसकी वर्शिपिंग? ग्रेव वर्शिपिंग। ग्रेव वर्शिपिंग बिद्दा की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है बिद्दा की कैटेगरी, बट उससे पहले कौन सी कैटेगरी में आता है? ताहूत, ओके। ना, उससे पहले शिर्क ना, वी टॉकिंग हाँ अबाउट हाँ, शिर्क, या ये हम इबादा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए ना कि क्या चीज क्या है। सो आपको ये चीज इमीडिएटली क्लिक होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी किसी भी एंटिटी को अगर उस लेवल पे लेकर चले जाएं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कोई एग्जांपल्स आपको मैं बिना नाम के ही दूंगी, लेकिन आई एम श्योर आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों में से बहुत सारी जमातें ऐसी बनी हुई हैं। मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस, अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह इस्लाहकुम, आमीन व अजमाइन या रब। लेकिन ऐसी जमातें बनी हुई है जिन्होंने कोई लीडर को, कोई अपने शेख को, कोई अपने इमाम को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि उनकी इबादत कर रहे हैं, इतनी हद तक कि वो अल्लाह के अहकामात से टकरा रही है और वो अल्लाह के अहकामात को छोड़ के वो लीडर को और वो स्कॉलर को और वो इमाम को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इमाम, दैट लीडर, दैट स्कॉलर इज तागूत, एंड डेफिनेटली इट्स अ शिर्क फॉर श्योर, राइट? बिकॉज इस तरफ है तौहीद। When you're following Allah Azza wa Jal, that is tawheed, and when you're following anything else, it is taghut, it is shirk. And yes, when I'm telling you कि भाई वो कब्रों की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे ना इखलास है, यानी वो दो कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही ना अल्लाह की खातिर है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर है, तो डेफिनेटली इट्स अ शिर्क एंड इट्स अ बिदअत। यस अमरीन। मैम, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे आजकल के जो स्पेशली इंडिया में तबलीग की जमात के बहुत से ग्रुप्स हैं, तो उनकी जो टीचिंग है और जो उनके फॉलोइंग है वो दैट डजंट गो अकॉर्डिंग टू द सुन्ना, बट दे आर सो persistent and what should I say, इतना ज्यादा रिजिड है उसमें कि वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। सर्टेनली वो लोग जो बुक भी फॉलो करते हैं वो भी कोई भी सुन्ना बुक फॉलो नहीं करते, दे हैव देयर ओन बुक Bahishti Zevar type. So, and those people who are like following them and हम उनकी बात जो मानते हैं, उनके टीचिंग पे करते हैं, तो वो भी तागूत में आएगा मैम? Absolutely, Amrin. I always fear people asking me direct questions like that. लेकिन सुभान yes, anything हमारे पास देखें, हमने इसलिए फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हम बात कर रहे थे ना तौकीफिया की, कि हम कुरान और सुन्ना को फॉलो करेंगे, हम कोई और थर्ड बुक्स को जो हम लेकर फॉलो नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली यस, कोई भी चीज जो ये चीजों से हटा के हमें कोई थर्ड चीजों के ऊपर डालें और वो चीजें हमारे सामने क्लियरली आ जाएं कि जो सही तरीके पे नहीं है, तो उसको हम लोग उस जमात को या उस लीडर को या उस स्कॉलर को हम फॉलो नहीं कर सकते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें क्लियरली वाजे कर करके हमें बता दी गई, हमारे सामने मौजूद हैं। तो बस ये है कि वो गलत चीजों के पास हम नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं जाएंगे। एंड यस, आई मीन आई एग्री दैट इट फॉल्स अंडर तागूत, डेफिनेटली। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज, मैंने कहा, कोई भी ऐसे शय, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी थिंग जो कि हमें सही तरीके से और सही रास्ते से हटाकर हमें उसकी अपनी हुर्मत में लगा दे या अपनी फरमाबरदारी में लगा दे, तो वो सब तागुत में चला जाएगा। राइट जी नसरीन, मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, लुबना, इसी सोच ने तो जो है ना हमारे अंदर फिरकाबाजी के दरवाजे को खोला है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही है, यहीं से दरवाजा खुलता है कि हम में से हर कोई अपने अपने इमाम या अपने अपने उस्ताद या अपने टीचर को कुरान और सुन्नत के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं कि वो ज्यादा बेहतर है, हम बाकी चीजों को छोड़ दें, हम इनको ही पकड़ लें। एब्सोल्युटली ठीक है, ये जो मिसाल दे रहे हैं ना, ये जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो यही है
यहीं से असल में स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल इसी सोच से हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से फिर हम आगे इतने आगे पहुंच जाते हैं कि बस कुरान और सुन्नत पीछे रह जाते हैं और हमारे इमाम ही हमारे आगे आ जाते हैं। इसी एब्सोल्युटली वजह से फिर हम असल दीन से, जो ओरिजिनल दीन है ना, उससे बहुत दूर निकल जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो अभी आपने बात की कि शिर्क जो है ना, वो अकीदे में जब हमारे खराबी आती है ना, और बिदअत हमारे अमल में खराबी आती है, तो ये दोनों अकीदा और अमल जब दोनों खराब होते हैं तो हम इखलास और उस दोनों चीजों से बाहर निकल जाते हैं। इत्तिबा सुन्नत और इखलास, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल यानी कि हमारी जो एक हिडन इबादत है जो दिल की है, ठीक है ना, इबादत कल्बी, वो मुतासिर होती है तो हम शिर्क में पड़ते हैं, ठीक। और जब हमारे अमल में आती है, हमारी इबादत में आती है, इखलास काम होता है या इत्तिबा सुन्नत काम होती है, उसमें कमी जब आती है तो बिदअत उसकी जगह ले लेती है। तो बिल्कुल जहाँ सुन्नत में कमी आती है वहाँ बिदअत जगह लेती है। बिल्कुल 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 सही और बिल्कुल सही। यहीं से दरवाजा खुलता है ये तागूत, ये सारे इस वक्त जो उम्मत का हाल है, 70 फिरकों में हम बटे हुए हैं, ये इसका दरवाजा यहाँ से खुलता है। ये है बेसिक रीजन, क्या कहते हैं। एब्सोल्युटली यही इसकी वजह, इसीलिए इन सब यही चीजों को से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर hand raises यहीं है। पर करेक्शन कर लेना तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसको समझना आसानी बहुत से, जरूरी। ये बड़े बारीक मैटर्स हैं लुबना, बहुत बारीक मैटर्स है। सही इसको बात है। समझना, गौर व फिक्र करना इसको बहुत जरूरी है। हम्म। दो हैंड रेजेस हैं, अमरीन एंड रशीद, आई गेस। या यस अमरीन। मैम मुझे रिया से रिलेटेड एक क्वेरी थी कि जैसे आपने कहा कि रिया में वो भी आएगा कि इफ वी वांट others to appreciate us and praise us, does that also comes under रिया मैम? यस ऑफ कोर्स, यानी हम लोग दूसरों की, देखें इबादत की खालिसपन क्या होती है कि आप जलवत में हो, खलवत में हो, अकेले हो, सबके सामने हो, आपका कनेक्शन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेले नमाज अपनी सलाह अदा कर रही हूँ तो मैं जल्दी जल्दी सजदे कर रही हूँ और बस अपनी किसी पोस्चर का ख्याल नहीं रख रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ हो, कोई मुझे देख रहा है, तो मैं बड़े तवील सजदे कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस? नहीं मैम, एक्चुअली मैं इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेक्स्ट से नहीं पूछ रही थी, लेकिन इन जनरल जब हम लोग कुछ भी अपने डेली लाइफ में कुछ करते हैं, नथिंग दैट्स नॉट एग्जैक्टली इबादत, नथिंग टू डू विद इबादत। Why would you say it is not इबादा? Like अगर मैं आपकी एग्जांपल पूछूं कि आप चैरिटी की बात करें, कौन सी चीज की आप बात कर रही हैं? Can you pinpoint? फॉर एग्जाम्पल लाइक जनरल हमने जैसे अपना हम जॉब करते हैं कोई, and we are doing our work and we are doing it with all the devotion and all, लेकिन isn't it human nature that he needs some appreciation for his good work? Like दुनियावी वर्क की मैं बात अगर करूँ, nothing to do with इबादत, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैरिटी और इबादत जो भी है, anything related to worship should solely be for Allah। लेकिन जो हम अपने दुनियावी काम करते हैं, जैसे हमने कुछ भी अपना कोई काम है, वर्क कर रहे हैं अपना रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल हमारी जॉब है, हम उसको अच्छे से कर रहे हैं, एंड इफ वी थिंक हम जो अच्छे से कर रहे हैं तो पीपल शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट अस और उसको माने, तो क्या वो भी रिया हो जाएगी? ह्यूमन नेचर नहीं है मैम कि वो इंसान अपनी चाहता है कि थोड़ा सा उसके काम के लिए अप्रिसिएशन मिले? ये अमरीन, ये दो कंसेप्ट आपने मिक्सअप किए हुए हैं। सी रिया एंड सुमाव जो है वो पर्टेनिंग टू द मैटर्स ऑफ इबादा, पर्टेनिंग टू द मैटर्स ऑफ वर्शिप। ओके, सो उसको सेपरेट करेंगे पहले हम लोग। दूसरा ये, अब आपके अगर क्वेश्चन पे आ जाए कि अगर आप अपने काम में अच्छी हो और आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक बात आप जहन में रखें, एक जनरल रूल इन सोशल फिलोसफिकल रूल मैं आपको बता रही हूँ। आपने नेकी कर दरिया में डाल, नंबर 1, understand the concept, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। Islam doesn't tell us or doesn't teaches us के you should not acknowledge good, you should acknowledge goodness, but expecting from others, like अभी एक वर्क कॉर्पोरेट सिनेरियो में आप देखें, if you are a hard working person, you will definitely be observed for your good work, और आपके जो incentives या bonuses या certificates या acknowledgement will come through, will always come through. We as Muslims and we as in general person, if we start expecting good for everything that we do, आप एक काम अच्छे से कर रही हो ना, तो वो आपकी क्या कहते हैं, यू आर बीइंग पेड फॉर इट, वो आपकी सैलरी आपको जो दे रहे हैं, तो यू आर सपोज टू डू दैट। बट इफ देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू आर डूइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, and if your seniors are good enough and if it is in your qadar, you will get it,
it is a kind of a risk for you. It is a blessing, right? It will come to you, but you cannot go claiming it, and you cannot sit there expecting it, because that will eventually lead to depression if you don't get it. You understand what I'm saying? Yes, ma'am. Thank you. Yes, I've understood it. ma'am. Yeah, Thank yeah. इस तरीके से अगर if you want to experience that peace in life, no, do goodness, pray to Allah and leave it. Do goodness, pray to Allah and leave it. Because हम लोगों को सुकून और हम लोगों को वो पीस जो है ना, वो ज्यादा मायने रखता है, और जो तुम्हारा रिस्क है ना, वो तुमको मिलकर रहेगा, because it follows you till your death, and it follows you like your death, कि वो आपको मिलकर ही रहेगा, and nobody can steal it from you, right? you. Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. you're welcome. रशीदा, आप पूछिए, आपका हैंड अप है, रेज्ड अप है. हाँ बाजी, बाजी मेरे को दोनों का डिफरेंस में क्या है, तागूत और शिर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट शिर्क इज आल्सो द सेम आई थिंक. You will come to know now. वो हम लोग अभी Decide. डिटेल में, रशीदा हम डिटेल में जाएंगे अभी उसके. ये एक एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए जा रहे हैं ना, उसको हम बड़ा अच्छे से शिर्क को भी हम समझेंगे, और अभी तागूत को और आगे हम और वी आर गोइंग डीपर इनटू इट. ठीक है? ओके बाजी. All right. So what is meant by a taghut here is that anything and or everything that is worshipped beside Allah Azza wa Jal, जैसे कि कोई बुत, कोई श्राइन, कोई प्लैनेट्स, कोई स्टार्स, कोई फायर, कोई शे, वो सब तागुत कहलाएगा. However, whoever is worshipped without his consent is not called तागुत. यानी कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल ईसा अलैहि सलाम का दिया, ईसा अलैहि सलाम ने तो कभी भी नहीं कहा नेवर एवर के मेरी इबादत करो, तो उनकी कंसेंट के बगैर, यानी उनकी मर्जी के बगैर कोई उनकी इबादत कर रहा हो, तो वो उसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है. लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरी इबादत करो, मैं हूं सही रास्ता, तो फिर क्या है? तो क्या वो तागूत होगा कि नहीं होगा? और अगर होगा तो क्या उसकी फॉल्ट होगी कि नहीं होगी? आप मेरा सवाल समझे? यानी तागूत लोगों ने उन्हें बनाया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी इबादत करो. लेकिन मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं, जहां पर ये एंटिटी या ये बंदा कहता है कि मेरी इबादत करो, तो वो क्या होगा? किसकी फॉल्ट है वो? मैम सिर्फ वो दोनों की Ma'am. फॉल्ट है. Absolutely. ma'am. जो it's है fault और of ये भी हम Absolute. फॉलो कर रहा है उसकी. बिल्कुल. Yes, अभी ma'am. इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. We can take an example of Firaun. Firaun said, I am the one, I can also give life and take life. If you remember those dialogues, तो आप देखें कि फिरौन का वो एग्जाम्पल है जहां पर वो उसकी कंसेंट है कि उसकी इबादत की जाए. तो इसमें दोनों पार्टी फॉल्ट में होंगी, जो जिन्होंने उसको तागुत बनाया और जो खुद सेल्फ अक्लेम तागुत हैं, तो ये उनकी कंसेंट से है. ऑलराइट. उसके बाद point number 3, Tawheed is the first obligation that Allah decreed upon his servant. यानी ये फर्स्ट ऑब्लिगेशन है, ये हमारे लिए फर्स्ट फरीदा है. इसकी रेफरेंस के लिए हम जाएंगे सूरा नंबर 17 वर्स 23. सूरा 17 वर्स 23. इसमें क्या आ रहा है? Allah Azza wa Jal said, and your Lord has decreed that you worship none but him, and that you be dutiful to your parents. इस आयत के अंदर आप फर्स्ट पार्ट ले लें तो ये इस चीज को बिल्कुल क्लियरली वाजे कर रही है. बल्कि इस आयत के अंदर तकरीबन 18 ऑर्डर्स हैं. ये जो है इसके अंदर 18 ऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों का जो चैप्टर है आज वो इसके रिलेटेड है कि वी डू नॉट टेक पार्टनर्स और वी डू नॉट वर्शिप anything, any entity except Allah Azza wa Jal. Do not step up any other God with Allah, or you will sit down rebuked, forsaken. दूसरा रेफरेंस है again from the same surah number 17 verse 22. So verse number 22 and 23 and 39 same surah में से, surah number 17 verse 39. ये क्लियरली हमारे पास रेफरेंसेस हैं जहां पर इस चीज को वाजे कर दिया गया है कि तौहीद जो है वो हमारे लिए फर्स्ट ऑब्लिगेशन है. सो तौहीद हमारे दीन इस्लाम, हमारे रिलीजन में एक
ऐसी मिसाल है कि ये हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का बेस है। जो पिलर्स लगते हैं ना, कभी भी बिल्डिंग बनती है तो पहले पिलर्स लगाए जाते हैं। दिस इज द पिलर, दिस इज द बेस ऑफ इट, तौहीद, ओके, मोनोथीजियम, दिस इज द पिलर। एवरी अदर वर्शिप और गुड डीड is built on this structure. कोई भी good deeds आप ले लें, कोई भी hidden, apparent, of limb, thoughts, words, actions, finance, money, anything, वो सब इसके ऊपर तामीर की जाएगी। अगर आपका अकीदा सही है, अकीदा तौहीद है, सही तरीके से है, इखलास एंड इत्तिबा, then and then only वो सारे दूसरे जो आपके अमाल हैं वो सही जगह पर जाएंगे, and it will fall into the category of acceptance. Accordingly, if man is good to his parents but he is not a monotheist, he is not on tawheed, then this will not benefit him on the day of judgment. Like for example, अगर एक बंदा अपने वालिदैन के लिए बहुत जबरदस्त फर्माबरदार बच्चा है, लेकिन वो अकीदा तौहीद पर नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि इसी आयत में है ना, द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ तौहीद एंड द सेकंड पार्ट इज दैट यू बी ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। तो एक बंदा तौहीद पर तो नहीं है लेकिन अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यौमुल आखिरा के दिन ये एक अकेली चीज, एक ये वाला डीड फायदा देगा? नहीं देगा। हालांकि ये बहुत अच्छा अमल है, अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ अच्छा इखलाक बहुत जबरदस्त अमल है, लेकिन क्या ये फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। Why? Because it is not based on अकीदा तौहीद. The first step is अकीदा तौहीद. इसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है. The importance of monotheism, since Allah has made it obligatory upon every nation. The religion of all the prophets is one. सारे के सारे रसूल, सारे के सारे नबी अंबियाओं ने एक ही तौहीद के ही बारे में लोगों को सिखाया और पढ़ाया। अल्लाह ताला की इबादत नहीं हो सकती जब तक कि हम तागूत को रिजेक्ट ना करें। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रही हूं, आप लोग गौर करें इस पॉइंट के ऊपर कि हम जो पिलर्स ऑफ इस्लाम, हमने फर्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था। पिलर्स ऑफ इस्लाम में शहादा है। व्हाट इज इट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज शहादा? उसका कलमा शहादा के कलिमात बताएं बस। यस माही। बाजी शहादा में we believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the kalimat of shahada? Kalma tayyib. Yeah, there is only one God, Allah, and Muhammad is his Arabic messenger. में बोले, Arabic में बोले। La ilaha illallah Muhammadur Absolutely. Rasulullah. Absolutely. बारकल्लाह फीक। हमारा पहला वर्ड क्या आता है या पहला लेटर्स हम क्या यूज कर रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इस पे गौर करें। ला, वी स्टार्ट विद नेगेशन। ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, यानी हम पहले कदम पे क्या कर रहे हैं? हम सारे तागूत को रिजेक्ट कर रहे हैं। वी आर रिजेक्टिंग all false gods, and then we are confirming and affirming illallah, except Allah, only Allah. यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो रिजेक्शन से शुरू होता है और फिर अल्लाह को हम अफर्म करते हैं। तो रिजेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में सुभान अल्लाह लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमारा पूरा 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 यकीन अल्लाह पे है, लेकिन हमारा यकीन वो दूसरे माबूदों पर भी है। तो क्या ये सही तरीका हुआ? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दीन इस्लाम, हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारा कलिमा क्या है? ला इलाहा। वी रिजेक्ट all false gods and then we affirm Allah. इस चीज को बहुत बहुत गौर करना है और इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि we reject the other gods first, we reject the other taghut first, and then we affirm the lordship, the divinity of Allah Azza wa Jal. Now, what is the wisdom of sending messengers? Allah Azza wa Jal ने messengers को क्यों भेजा? For what reason? Messengers were sent
पहले तो ये अल्लाह का रहम करम है हमारे ऊपर, एज आई सेड, कि टू गाइड अस, टू मेंटर अस, टू टीच अस। ये अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी नेमा है। इट्स अ मर्सी टू मैनकाइंड। And the work of messengers क्या है? To show the path that leads to Allah Azza wa Jal. As man individually cannot know the details कि what Allah wants from him except through the messengers. And number third is to remove any excuses कि कल आप ये हुज्जत नहीं कर सकते कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया नहीं गया। तो ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अल्लाह की एक एक नेमतों का शुक्र अदा करना है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी कंप्लेन। हमारे लिए हमारे पैदा होने से पहले कितने इंतजामात हैं, सब चीजें हमको प्लेटर में दीन इस्लाम सर्व किया गया है। हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है पूरे इखलास से, प्रॉपरली। ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है, सुभान अल्लाह। एनीवेज इट्स ऑलरेडी 11:05। लुबना, अकीदा कंटिन्यू करूं और फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा फिक्र ले लूं? व्हाट डू यू सजेस्ट? नहीं नसरीन, इतना काफी है। पता है क्यों? वो चीजें पे मिक्स होना शुरू हो जाती है। सही है, तो काफी इंशाल्लाह है वो, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, जी तो वो जी ज्यादा बेहतर है जी। अब फिर की भी कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी, तो उसी की बेस पे फिर नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे ना। अगर ठीक। हम उसको ज्यादा करेंगे तो वो चीजें सब मिक्स होती हैं। चलें ठीक, इंशाल्लाह ताला। हाँ तो जी इसके जी। बारे में आज के अभी जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल क्लोज दिस एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट विद द फिक्र। Anybody's got any questions? We are clear? We know about Taghut now? Chale, okay, then we will end this and I will just stop the recording and then continue. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. आप stay करें, just stay, hang in there.